Okay guys, in last session we discussed about the summation and subtraction of vector, and we just write some of this equation also. Okay, let's write first equation. What is resultant magnitude? So r is equal to under root s square plus b square plus 2ab cos theta. That is a resultant. Okay, second one, what is angle? This direction, tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. So first you remember this whole equation, and this direction with a, this direction is what? With a, as we just derive this relation, and we draw the figure also, triangle and parallelogram. Okay, and some of this additional note: if theta is equal to 0, then r is maximum. If theta is equal to pi, then r is minimum, and if theta is equal to pi by 2, then r is equal to under root a square plus b square. We just derive some of those relations. Now one another notes we must be right here. What is this note? See, if a is equal to b, if a is equal to b, then what resultant? Then find r. That is the one special note, so you must be remember. Okay, if a and b both are same, if a and b both are same, then what is resultant, actual resultant? So r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. बट अभी a एंड b बोथ आर सेम, देन यहाँ पे a b को a से रिप्लेस करो. सो व्हाट इज r? सो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2a into a. Okay, means b is replaced by a into cos theta. Means you arrange the two equal vectors a and a at angle theta like this. Okay, then what is resultant? Then this is the resultant. Then we just derive one special equation for this type of case. Okay, so let's we just write down answer. A square plus a square 2a square, a square plus a square कितना हुआ? 2a square. Okay, plus 2a into a, so that is also 2a square into cos theta. So 2a square common out, so what is answer? Under root 2a square 1 plus cos theta. So use the trigonometry, use trigonometry equation. Cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. तो इसका होगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा. अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है तो आंसर क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा है. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर 2 थीटा है तो आंसर थीटा हो गया. अगर 1 प्लस cos थीटा है तो आंसर थीटा बाई 2 हो जाएगा. यहाँ पे जितना भी एंगल है 2 थीटा है तो आंसर क्या होगा? देखो थीटा हुआ, यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल है उसका यहाँ पे हाफ हो जाएगा. तो सिमिलर वी यूज दिस रिलेशन. So 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. So put this value here. So by using this rule, so under root 2a square into 2, यहाँ पे एंगल कितना है? देखो, what is the angle here? Theta. So here the angle is changed to cos square theta by 2, मतलब हाफ हो जाएगा. So इसका अंडर रूट निकालो. So 2 into 2 4 का अंडर रूट 2 हो गया. सो r इज इक्वल टू 2. ए स्क्वायर का अंडर रूट निकालो, ये क्या हो गया? a. सो r इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू कोस स्क्वायर का अंडर रूट निकालो तो हो गया कोस. सो इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. राइट इट प्रॉपरली, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. ओके, सो दिस इज द रिजल्टेंट. You must be remember this equation, very helpful. But when you only use this relation if a is equal to b, otherwise not. If both the vector having a same magnitude arranged at an angle theta, then resultant is equal to r is equal to 2a cos square theta, sorry cos theta by 2. अंडर निकले तो एक स्क्वायर चलेगा, cos theta by 2. Okay, so not this one, all of you guys not. So we just getting this relation, r is equal to a cos theta by 2. So again if, let's we write, if a is equal to b, then r is equal to 2a cos theta by 2.
Okay, so you must be noted. If means we are using this relations during the examples. Okay, and one another case, if you just use the two vectors are same, and resultant is also same, then what is angle? If r is equal to a1, a is equal to b, then find the theta between those two vectors. That is a one special case. This you must be right again one note. If resultant is equal to a is equal to b, then फाइन थीटा. मतलब कि रिजल्टेंट जो है वही ए जितना है वही, मतलब मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो फिर थीटा कितना होना चाहिए? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा? व्हाट इज द एंगल थीटा? ओके, लेट्स वी यूज दिस वन. इफ बोथ दिस फैक्टर आर सेम, देन व्हाट इज आर? सो आर इज इक्वल टू 2a इंटू कॉस थीटा बाई 2. सो आर की जगह पे भी ये रख दो, तो a is equal to 2a cos theta by 2. So a cancel out here, a cancel out. Okay, so what is the answer? So cos theta by 2 is equal to 1 by 2. Cos theta by 2 is equal to what? 1 by 2. So when this cos theta is 1 by 2, so for which angle cos theta is 1 by 60 degree? So here theta by 2 is equal to what? 60 degree. It means theta is equal to what? 120. So that is the one another special case. If you arrange the two equal vector at 120 degree, then resultant is equal to what? So same as the vector. Let's we are drawing this figure. Suppose it is a, and arrange the b somewhere here. That is again a, means magnitude a, vector b, but magnitude same. Then angle between these two is what? 120 degree. Then what is the resultant? See, find the resultant, you get the same answer. And this one is what? R. So in this case R is equal to A is equal to B. ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए. ये भी एक स्पेशल केस है. अगर आप दो वेक्टर्स को 120 पे अरेंज करते हो तो फिर रिजल्टेंट है वो इतना ही आता है जितना कि ए और बी है. मतलब ए एक कंडीशन होनी चाहिए, अदरवाइज वी आर नॉट अप्लाई दिस रूल. इफ दिस ऑल आर सेम, देन थीटा इज मस्ट बी इज इक्वल टू व्हाट? 120. Okay, all of you guys note this notes also. Then after we are just starts our today's session. Okay, so let's we solve first example. Okay, first example, two vectors having equal magnitude, two vectors having equal magnitude 5 units have an angle 60 degree between them. What is the angle between them? 60 degree. Find the magnitude of the resultant. Find the magnitude of the resultant angle with this any one of this vector. So this type of case, see, suppose this one is A and B. Here A is equal to B is equal to what? 5 units. इसके बीच का एंगल कितना है? देखो 60 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री. Then this angle is 60. So what is resultant? So can we draw the resultant in this way? Draw the parallel line A, parallel line B. So resultant is this one. Okay, so if here A and B both are same, so method 1, use this method. R is equal to under root A square plus B square plus 2AB cos थीटा. मतलब ए की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू पुट करो और इसका आंसर फाइंड करो, तो ए जो भी आंसर होगा वो आपको मिल जाएगी. तो कैलकुलेशन होमवर्क में. बट यूज द सेकेंड मेथड. वी जस्ट डिराइव दिस इक्वेशन. व्हाट इज दिस इक्वेशन? इफ ए एंड बी बोथ आर सेम, देन एंड देन ओनली वी यूज दिस मेथड. आर इज इक्वल टू 2a cos theta by 2. Okay, so put this value. So 2, what is A? A is a 5, so into 5. Theta is equal to 60, so theta by 2 is what? Cos 30. What is cos 30? Root 3 by 2. So answer is what? 10 into root 3 by 2. So 2 and cancel out, 2 and 2 cancel out. So what is resultant? So R is equal to 5 root 3 units. See, by this way you just getting answer easily. Okay, so first method भी आप कर सकते हो सॉल्व, अगर ये सेकंड मेथड याद नहीं है तो. लेकिन इक्वेशन, इफ यू नो दिस इक्वेशन, then use this equation directly, you getting this answer. Okay, and what is alpha? Then alpha is this one.
So we have this equation alpha. So tan alpha means direction, okay. So and tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. So put this all value. So 5 into sin theta कितना है, देखो यहाँ पे थीटा 60 है. So sin 60 कितना होगा, √3/2. So put it √3/2 upon okay, put it √3/2 upon a plus b. So a कितना है 5 प्लस b भी कितना है 5. cos 60 कितना होगा, cos 60 1/2. सो यहाँ पे 1/2 रख दो. तो इसका आंसर है 5 5 5 कैंसिल आउट. सो √3/2 इन न्यूमरेटर अपॉन 1 + 1/2 इन डिनोमिनेटर. और फिर फाइनल आंसर क्या है, देखो √3/2 इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 1 + 1/2 दैट्स 3/2. सो 2 and 2 कैंसिल आउट. So answer is what, tan alpha is equal to √3/3. यहाँ पे भी √3 कैंसिल आउट. सो tan alpha is equal to 1/√3. कौन सा एंगल के लिए tan alpha 1/√3 होता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ द अल्फा. सो वी गेट दिस tan alpha is equal to 1/√3. So alpha is equal to what, 30. You see the trigonometry table, you get this. ट्रिगोनोमेट्री टेबल में एंगल है ही. tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है. tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3. तो डायरेक्टली आप ये पुट कर दो यहाँ पे, tan alpha is equal to 1/√3. सो alpha is equal to 30 डिग्री. ओके, सो दिस आर आवर आंसर. सी r is equal to 5√3 आगे आंसर, और alpha is equal to 30 डिग्री. इसमें भी अगर आप पहली मेथड यूज़ करते तो भी आंसर तो सेम ही रहेगा, 5√3. ओके, ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस इन योर बुक्स, देन आफ्टर वी आर गो टू दिस नेक्स्ट. ओके, नोट इट. Let's see second one. Two forces each have equal magnitude. What is this magnitude? 10 Dan. Then as shown, acting as shown in figure, find the resultant of this one. So resultant find करना है. तो फिर forces है तो फिर सिंबल लेते हैं F1 and F2, हाँ ना. टू फोर्सेस है तो सिंगल सिंबल ले लो, F1 is equal to F2 is equal to 10. इसको आप F1 मान लो, इसको आप F2. Then what is theta? Theta is equal to 60 degree. Then this is wrong, because we've already studied about this angle between the two vectors. This is not angle between two vectors. Theta say 160 degree is wrong. So let's we just draw this figure again. So it is what, F1. F2 इस लाइन पे है कहीं पे, लेकिन आपको F2 को यहाँ पे ड्रॉ करो ऐसे, क्योंकि एरो वही डायरेक्शन होना चाहिए. तो ए एंगल कितना है 60. टोटल वन लाइन का एंगल, सिंगल लाइन का एंगल कितना है 180 होता है. तो फिर ए एंगल कितना हुआ 120. तो ए 120 जो है थीटा वो सही आंसर है. 60 degree does not angle between the two F1 and F2. Here the angle between the F1 and F2 is what, 120 degree. So here theta is equal to what, actually 1. It is a correct one. It is a correct one. यहाँ पे भी आप दो मेथड यूज कर सकते हो. देखो फर्स्ट मेथड 1, रिजल्टेंट R is equal to under first square means F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos थीटा. आप यहाँ पे ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो. cos 120 यहाँ पे लिखना है, ठीक है. तो ये जो है फाइंड करो होमवर्क में. हाँ, यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ cos 120 कैसे फाइंड करता है, ठीक है. एज वी स्टडीड इन अ प्रीवियस सेशन, यू वांट अ cos 120, क्योंकि यहाँ पे एंगल 120 का है. सो हाउ टू गेट दिस, सी वेरी सिंपल, यूज दिस यूनिट सर्कल मेथड. सो you just write cos 120 is equal to cos 90 plus 30. Can we write like this? So draw the unit circle. This is unit circle. Where is the 90 degree? So here the 90. यहाँ पे प्लस है. So plus means मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज. सो मूव एंटी क्लॉकवाइज. सो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट. राइट ऑन ऑल STC. सो ऑल STC. सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, बट अपना फंक्शन कौन सा है, कोस है. तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है लेकिन कोस कैसा है, नेगेटिव. तो यूर फंक्शन इज व्हाट, कॉस. सो फर्स्ट पुट नेगेटिव साइन. सो नेगेटिव. इफ 90 is given then function is changed, otherwise not.
इफ 90 इज गिवन फंक्शन इज चेंज, तो कोस का फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। एंगल कितना है यहाँ पे थीटा 30, सो साइन 30, सो आंसर कितना हो माइनस साइन 30 मतलब 1/2, सो कॉस 120 इज इक्वल टू -100। मतलब आप जब भी आप फर्स्ट मेथड से आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो कॉस 120 इस तरह से फाइन करके -1/2 रख देना, ठीक है। तो इतना जो है वो फर्स्ट मेथड होमवर्क में करनी है, और कॉस 120 का जो डाउट्स आपका रहेगा वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। चलो तो फिर ये फर्स्ट मेथड होमवर्क में करो। नाउ लेट्स कम्स टू द सेकेंड मेथड टू एंड सिंपल वन। सी F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल 120 है। हियर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू tan डाइन एंड थीटा इज इक्वल टू, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर आंसर क्या आता है, R इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2। अभी भी हमने ऐसा इक्वेशन ऐसा प्रूव किया। इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 120, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज व्हाट 120, एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बोथ इज सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 120 है, तो फिर रिजल्टेंट भी क्या होगा, सेम। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, R इज इक्वल टू tan डाइन। तो सेकेंड मेथड ऐसी, मतलब आप कोई भी कैलकुलेशन के बिना पे ये सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट मेथड भी यूज़ करोगे आंसर इतना आएगा। यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम फर्स्ट मेथड, देन आफ्टर यू जस्ट फॉलो द सेकेंड मेथड। ओके, दैट इज अ शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व आउट द सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, all of you guys write down, then after we are just go to the next one. Note it. Let's see third problem. Answer is 10 then. See, answer is 10 then. Okay, let's see. If a plus b is equal to c, मतलब कि a और b वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, c। Here resultant is what, c. You must be note. Resultant is equal to c. Okay, and a और c दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, b और c का दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब b का मैग्नीट्यूड c से डबल है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन a and b। दैट इज अ वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज गिवन टू अस समटाइम। देन लेट्स वी यूज दिस रिजल्टेंट। सो व्हाट इज रिजल्टेंट? सो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू फाइंड आउट। अगर कोई भी आपके पास कोई वेक्टर है a और b, आपके पास कोई भी वेक्टर है a एंड b, उसका आप फाइंड करते हो तो फिर इस तरह का कंडीशन है, सी स्क्वायर इज मतलब रिजल्टेंट ऐसा होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर की जगह पर अभी सी है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सभी मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं, सो पुट करते जाओ। चलो सबको सी के सी में कन्वर्ट कर दो, सब मैग्नीट्यूड होगा। सो सी स्क्वायर एज इट इज। Okay, now a and c both are same. See, sorry. See here, a and c both are same. So put a square is equal to c square plus b is equal to 2c. तो उसका स्क्वायर करो तो 2c स्क्वायर प्लस 2a मतलब c, b मतलब 2c into cos theta. So let's find this one. So c square is equal to c square प्लस 2c स्क्वायर मतलब 4c स्क्वायर, 2c स्क्वायर मतलब क्या होता है 4c स्क्वायर। ओके, प्लस 2 इंटू 2 4c स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या होता है 4c स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सिंप्लीफाई दिस अगेन। सो c स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से c स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो c स्क्वायर कॉमन, सो 1 प्लस 4 कॉस थीटा। सो c स्क्वायर cancel out. So write down the remaining terms. So 1 is equal to 4 plus 1 5 plus 4 cos theta. तो 5 को सामने की तरफ जाना दो तो 1 minus 5, 1 minus 5 कितना है 1 minus 5 minus 4, so minus 4 is equal to 4 cos theta। तो फिर cos theta is equal to minus 4 upon 4 is equal to minus 1। Okay, so it means cos theta is equal to minus 1. So when this cos theta is minus 1, for which value of theta cos is becomes minus 1, then fix answer theta is equal to pi. Okay, as we know the unit circle, you draw the unit circle, then 0 pi, here pi by 2 and here 3 by 2, then cos 0 is 1, cos 0 is 1,
cos pi by 2 is 0, cos pi is minus 1. ओके, सो हियर cos थीटा इज माइनस, मतलब थीटा कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए, क्योंकि cos पाई का आंसर क्या आता है, -1. सो अपना आंसर हुआ थीटा इज इक्वल टू पाई. वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, एंड आवर आंसर इज ऑल्सो गिवन 180 डिग्री. 180 डिग्री मतलब पाई, 180 डिग्री मतलब क्या है, पाई. ओके, ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस एग्जाम्पल, देन आफ्टर वी आर गो टू दिस नेक्स्ट वन. ओके, नोट इट. लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. If A is equal to B is equal to C, again similar type problem is given to us. मतलब A और B, मतलब रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे, C है. रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, C. A and C परपेंडिकुलर है. A and C कैसा है, परपेंडिकुलर. B और C का रिलेशन ऐसा है कि B इज इक्वल टू C. तो फिर A और B का बीच का एंगल चाहिए. We want the angle between these two. Here we are not use the direct relation a square c square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. Why? We have and in this one we are not this relation between a and c is unknown. अगर यहाँ पे a और c का रिलेशन ऐसे दिया हुआ था इस प्रॉब्लम के साथ, तो फिर फाइंड कर सकते हैं इसे इक्वेशन यूज़ करके. बट यहाँ पे ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पे फिगर से फाइंड जाना पड़ेगा. ओके, लेट्स वी ड्रॉ a somewhere. Let's you draw somewhere a. So suppose it is A. Okay, now what is the relation? See, A perpendicular to C. तो A फिर यहाँ पे C तो ऐसे ही यहाँ कुछ आएगा. चलो यहाँ पे C मान लो. A क्या मान लो, C. ऐसे कुछ रिजल्टेंट C यहाँ पे. क्यों? ओके, एंगल कितना है उसके बीच का, 90 डिग्री परपेंडिकुलर. ओके, तो फिर B कहाँ पे होना चाहिए. Let's we just drawing the A like this. So B must be, see, if you find the resultant, resultant is always between the two vectors. Resultant two vector के बीच में क्या, मतलब B कहीं पे यहाँ पे होना चाहिए. तो ये हो गया B. पता नहीं, कहीं पे भी ड्रॉ करो, कहीं पे भी आप ऐसे B ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, अभी पैरेललोग्राम क्रिएट करो. क्रिएट द पैरेललोग्राम. सो ड्रॉ दस one vector, draw one vector from the head of A which is parallel to B. So this one. Draw one another line from the head of B which is parallel to A. तो यहाँ से ड्रॉ करो parallel to A. तो ऐसा कुछ हुआ, तो रिजल्टेंट ऐसा. हमें A और B का कुछ एंगल चाहिए. We want a angle between A and B. Okay, so let's find this theta. Suppose this one is theta. This angle between A is not theta. कंसिडर एंगल थीटा है सपोज. तो फिर एंगल बिटवीन थीटा ए बी कितना हुआ, देखो थीटा बिटवीन ए टू बी इज 90 प्लस थीटा हुआ. ए और बी के बीच का एंगल कितना हुआ, देखो 90 प्लस थीटा. क्यों, थीटा ए बी इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा. क्यों 90 प्लस थीटा, सी ए यहाँ पे है, B यहाँ पे है, तो टोटल एंगल कितना हुआ, 90 प्लस थीटा. सो यू कैन फाइंड द थीटा बाय एनी वे, देन यू जस्ट गेटिंग द आंसर बिटवीन A and B. So I am just telling, when you draw the any parallelogram, so this line is, this vector is A and this is also exactly similar to A. This is B, this is also exactly similar to B. So here what is this actually, you just write down some of this data. See, this one is given to us, what, B is equal to 2C. B is equal to, that is a given data, and this one is represents A. Okay, this one is represents a C, and this is represents a B. So use this triangle. Let's we give some name. So X, Y, Z. So in triangle X, Y, Z, in triangle X, Y, Z, use one what we can say, one rule of tan or cos or sin whatever. So आपके पास क्या है, देखो आपके पास C है और B है, क्योंकि यहाँ पे उसका रिलेशन है ना. तो आप ऐसा कुछ थीटा फाइंड करो जैसे आपको C और B मिलना चाहिए. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. सो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल यू हैव एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनियस साइड. आपके पास क्या है, एडजेसेंट साइड है और हाइपोटेनियस साइड है. तो उसका रिलेशन यूज़ करो. एडजेसेंट और हाइपोटेनियस किस में आता है, कोस में आता है, साइन में आता है. तो सिंपली इसमें कॉस थीटा यूज़ कर सकते हैं. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब क्या, एक्स जेड अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस मतलब क्या, एक्स वाई.
ऐसा पाएंगे प्योरली लॉजिकल है, इसमें आपको जियोमेट्री पता होनी चाहिए कि cos थीटा कब यूज़ करना है, sin थीटा कब यूज़ करना है. cos थीटा, when we use the cos थीटा, when you have adjacent and hypotenuse, use this triangle ना, we just use this triangle. यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, यहाँ पे y है, एंगल थीटा है और AC है और AB है. ओके तो XZ मतलब C और XY मतलब B, तो इसका आंसर क्या है C अपॉन B. तो फिर cos थीटा इज इक्वल टू C ऐसे ही रखो, B की जगह पे क्या रख दो 2C गिवन है, तो फिर C कैंसिल आउट, कितना आया 1/2. cos थीटा कब 1/2 होता है, when the cos theta, for what value of theta cos theta is equal to 1/2. So theta is equal to fixed, theta is equal to what, 60 degree. You just find the value of cos 60, answer is 1/2. So theta is equal to 60. What is the angle between A and B? So theta AB is equal to 90 plus 60. So answer is what, 150. That is our answer. Okay, so all of you guys note this example in your books, then after we are go to the next one and your answer is what, 150 degree. यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ किया है. ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम जब भी आपको एग्जाम में आते हैं तो इस तरह की थ्योरी आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस नोट इट. लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 5. Example number 5. The magnitude of the pair of a displacement vector are given here. So these are the some A, B, C and D. All are magnitudes. All are magnitude of displacement. Okay. Which pair of displacement vector cannot be added to give a resultant is equal to 13 centimeter. मतलब कि आपके पास सपोज A B, इसमें A है, इसमें A B A है, इसमें A B A है और इसमें A B A है. तो आपको रिजल्टेंट क्या चाहिए, रिजल्टेंट इज इक्वल टू यू वांट अ 13 सेंटीमीटर, यू वांट अ 13. तो ए और बी आपको पता है, तो फिर यूज दिस थ्योरी एज वी डिस्कस इन अ प्रीवियस सेशन. आर इज ऑलवेज, आर मिनिमम लेस देन आर मैक्सिमम. आर इज ऑलवेज बिटवीन दिस टू, आर इज ऑलवेज बिटवीन द टू, आर मिनिमम एंड आर मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए. तो फर्स्ट पेयर में काउंट करो आर मिनिमम आर मैक्सिमम, फर्स्ट पेयर में. तो फर्स्ट पेयर में आर मिनिमम क्या आता है 16 माइनस 4, तो फिर आता है 12. और आर मैक्सिमम क्या आता है फर्स्ट पेयर में 16 प्लस 4, तो क्या आता है 16 प्लस 4 20. सो ए आर मिनिमम और आर मैक्सिमम है. ठीक है, सेकेंड पेयर में फाइंड करते हैं. चलो बी में आर मिनिमम क्या आता है, आर मिनिमम तो 20 और 7 की पेयर है, तो 20 माइनस 7 कितना आया 13. आर मैक्सिमम क्या आता है 20 प्लस 7, तो कितना आया 27 सेंटीमीटर. उसी तरह सी में फाइंड करो. चलो सी, तो आर मिनिमम कितना आता है 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14. और आर मैक्सिमम कितना आता है 15 प्लस 1, तो कितना आता है 16. और डी में फाइंड करो, तो फिर आर मिनिमम कितना है 8 माइनस 6, तो कितना आता है 2 सेंटीमीटर. और आर मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो 8 प्लस 6 मतलब 14. चलो तो ऐसा हुआ लेस देन और इक्वल टू, दोनों हो सकते हैं ना. आर के आगे वैल्यू मिनिमम भी काउंट करते हैं. तो फिर फर्स्ट में देखो. चलो तो जो हमको 13 चाहिए, तो इस 12 और 20 के बीच में 13 आता है, तो आता है 12 के बाद 13, 12 13 14 15. सो मतलब फर्स्ट में आंसर 13 पॉसिबल है, फर्स्ट का आंसर 13 पॉसिबल है. सेकेंड में चलो, तो इस सेकेंड में आंसर कितना है 13 सेट में आता ही है, तो सेकेंड में भी पॉसिबल है. ओके, थर्ड में चलो, थर्ड में तो 14 और 16 के बीच में कहीं पे 13 आता है, नहीं आता है, क्योंकि 14 से पहले 13 है. तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे रिजल्टेंट है वो 14 और 16 के बीच में आ सकता है. सो दिस पेयर डज नॉट गिव्स अ रिजल्टेंट ऑफ 13 सेंटीमीटर. अगर आप एक वेक्टर है और 15 सेंटीमीटर का लेते हो, दूसरा वेक्टर है 1 सेंटीमीटर का लेते हो, उसका रिजल्टेंट कोई भी अरेंजमेंट के लिए 13 नहीं मिलेगा, 14 मिलेगा या फिर 16 मिलेगा, या फिर कोई भी वैल्यू 14 के और 16 के बीच में आएगी, लेकिन कभी भी 13 है. सो दिस वन इज करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर. ओके,
यहाँ में हमें वही फाइंड, विच पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट गिव अस टू रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 13। लास्ट में भी देख लेते हैं, चलो। तो 2 और 14 के बीच में कहीं पे 13 आता तो आता है, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो फिर यहाँ पे भी आता है। सो आपको जब इस तरह के एग्जाम्पल पूछते तो आप एक कंसेप्ट का यूज़ करो, ठीक है। रिजल्टेंट इज ऑलवेज बिटवीन द आर मिनिमम एंड आर maximum. Minimum means a minus b and maximum means what? A plus b. Okay, so thus answer is what? C. So this answer is C. Okay, all of you guys note this example. Sometimes this type of example asking in a examination. Last year JEE examination this type of questions were asked. Okay, let's see next problem. Example number 6. Set of displacement 10 20 40 and 90. Set of displacement 10 20 40 90 can be capable to bringing a car to its return point. मतलब आप ऐसे कोई डिस्प्लेसमेंट में चलते हो, आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर का है, दूसरा 20 का है, तीसरा 40 का है, चौथा 90 का है। तो फिर आप कार है तो कार रिटर्न पॉइंट पे मतलब इनिशियल पॉइंट पे वापस आती है कि नहीं, फाइंड करना है हमको, यस और नो आंसर देना है, ठीक है। कैपेबल टू ब्रिंगिंग अ कार टू इट्स रिटर्निंग पॉइंट, मतलब कार है जो वापस आ जाएगी। तो फिर इसकी प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है। देखो, यू मस्ट बी रिमेंबर फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इफ़ यू स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर हियर, सपोज इट्स इनिशियल पॉइंट, you have a number of vectors, that's first vector, second vector, third vector, fourth vector, fifth vector, sixth vector, ऐसे कुछ काफ़ी सारे वेक्टर्स है आपके पास, ठीक है। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम में अगर आप वापस आते हो तो फिर रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए। रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, ये इनिशियल पॉइंट है, पहले ऐसे गए और वापिस आए, ऐसे भी हो सकता है। तो फिर ये भी फाइनल पॉइंट भी यही हुआ। तो ऐसे दो पेयर आप बन सकते, दोनों में रिजल्टेंट कितना होता है? ज़ीरो होता है। दोनों में रिजल्टेंट कितना होता है? ज़ीरो। ओके, अभी आप दूसरी फिगर को पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर ज़ीरो नहीं होता, ज़्यादा होता है तो फिर आप ऐसा भी काउंट कर सकते हो कि आप ऐसे गए आई से, ए वेक्टर है तो एक वेक्टर को ऐसे अरेंज किया, दूसरे को ऐसे अरेंज किया, तीसरे को ऐसे अरेंज किया, फिर भी वापस आ गए, तो फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो फिर ए जो है वो लॉन्गेस्ट वेक्टर है, इसमें भी ए कौन सा है? लॉन्गेस्ट वेक्टर है ना। तो फिर लॉन्गेस्ट वेक्टर की लेंथ जो है वो बाकी जो वेक्टर्स है आपके पास 1 2 और 3 जितने भी है, बाकी जितने भी वेक्टर्स है आपके पास, बाकी उससे उसकी लेंथ कितनी हो, कैसे होनी चाहिए? कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए? अगर ऐसा केस है तो कम होनी चाहिए, अगर ऐसा केस है तो इक्वल होनी चाहिए। ये इसकी थ्योरी है। तो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? यू मस्ट बी रिमेंबर वन नॉट टू सॉल्व आउट दिस टाइप प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गेस्ट वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गेस्ट वेक्टर इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू, नॉट ओनली इक्वल टू, क्योंकि लेस देन भी चलता है, लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर्स। एक कंडीशन है, ओके। जो लॉन्गेस्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लॉन्गेस्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उस वेक्टर की जो लेंथ होती है और बाकी की वेक्टर की लेंथ है, सम ऑफ दिस लेंथ है, कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। कम है तो ऐसी कंडीशन बनेगी, तो फिर आप इनिशियल पॉइंट पे वापस आ सकते हो। अगर इक्वल है तो ऐसी कंडीशन बनेगी, तो भी आप वापस आ सकते हो। लेकिन नहीं है तो क्या होगा? देखो, इफ़ इट इज़ नॉट, इफ़ लॉन्गेस्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो क्या होगा? देखो, ये लॉन्गेस्ट, आप वापस आए, लेकिन इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, मतलब इनिशियल पॉइंट पे आप वापस नहीं आ सकते। देखो, ठीक है, यहाँ पे हमें इतना वेक्टर है वो चाहिए एडिशनल वापस आने का। तो ये कंडीशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गेस्ट वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर्स। इसमें कितने मैग्नीट्यूड वेक्टर्स है? 1 2 3 4। सो ए इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, सी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर और डी इज इक्वल टू 90। चलो 4 वेक्टर लिख दिए, ए बी सी डी। तो इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है? डी है। तो डी की लेंथ कितनी है?
90 सेंटीमीटर। बाकी का सम करो तो a प्लस बी प्लस सी कितना हुआ देखो, 10 प्लस 20 प्लस 40 कितना आता है, 40, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 40 70 किलोमीटर कितना आता है, 70 किलो। तो फिर आंसर क्या है देखो, मोड डी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ऐसा है। तो कंडीशन क्या है, लेस देन होना चाहिए। व्हाट इज दिस कंडीशन, लेस देन। यहाँ पे आया क्या, ग्रेटर देन, मतलब कि नो, वापिस जो है कार नहीं आ सकती, कार जो है इनिशियल पॉइंट पे वापिस नहीं आ सकती। राइट, तो आंसर क्या आएगा, नो। क्यों, देखो अगर आप डी तक चले गए 0 से 90 किलोमीटर तक, उससे पहले वापस आए 10 किलोमीटर तक, उसके बाद वापस आए 20 किलोमीटर तक, उसके बाद वापस आए 40 किलोमीटर तक, लेकिन रिमेनिंग तो इतना तो बाकी रहा ना, इनिशियल पॉइंट तो आप आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आपके जो डिस्प्लेसमेंट ख़त्म हो गए। ओके, सो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये आपका फाइनल पॉइंट, और दोनों सेम नहीं हुआ, मतलब कार जो है और वापस रिटर्न नहीं आ सकती। इसलिए D मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। इफ कार इज कम बैक टू द सेम पोजिशन, इफ कार इज कम बैक टू द सेम पोजिशन देन दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये रिक्वायर्ड, अगर नहीं है तो फिर कार वापस नहीं आ सकते। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस एग्जाम्पल एंड अवर आंसर इज व्हाट, नो। व्हाट इज अवर आंसर, नो। तो आप इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हो, देखो, इफ A, B, C and D are the magnitude of all vectors, अगर ये सभी मैग्नीट्यूड है, and D is the longest vector, A B C D मैग्नीट्यूड है, D उसमें से लॉन्गेस्ट है, then condition for come back to ओरिजिनल पोजिशन, मतलब आपको वापस आने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि D मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गेस्ट वेक्टर बाकी के वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ए नोट आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर वो पहली नोट्स में आपको कुछ पता नहीं चलता, आप इस तरह से लिखो तो इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ओके, ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस, लेट्स सी दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गेस्ट वेक्टर लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर्स। अगर ये कंडीशन है तो फिर आप वापस आ सकते हो, नहीं है तो नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसमें से आपको यस और नो आंसर देना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको पूछ सके। ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस एग्जाम्पल इन योर बुक्स प्रॉपर्ली एंड राइट दिस कंडीशन ऑल्सो, राइट दिस कंडीशन, देन आफ्टर वी आर गो टू दिस नेक्स्ट। ओके, नोट इट।